Hello and welcome at Exam Zone 24/7. In today's session, we will be discussing, as you see in the thumbnail, whether during the document verification, especially the job profile verification, whether anyone will be rejected or not, as quoted by SBI. Hope this session will be useful to you and your friends. Hello, dear aspirants, and greetings of the day. In today's video, we are going to discuss which category or type of job profile candidates would not be considered for SBI CBO and may be rejected either at the time of document verification or after the final result is declared. Okay. See, the rejection will be due to job profile. Hope you better understand for the job profile. Job profile is the work what you have done as mentioned in your experience certificate or whatever you have declared. It may be, you may be rejected either at the document verification when you attend the interview center, interview venue, then you go through document verification. They may reject you outrightly if you are creating a nuisance there. They will mark something on your document. Later they will take the interview and they won't consider you further. Even after the interview, the document is again screened, and in it was one of incidences to my students where he was rejected during the final result, and mail came and email information came regarding the job profile that the job profile found not suitable as asked in the advertisement. So be very careful and see the video completely. You may be missing some points, whatever I am quoting to you, that may deteriorate the chances of your selection. Let us have more clarity on it. See, if you see the advertisement of SBI CBO, okay, you will find there uh, in point number 16 of the general information that before applying for the post, the candidate should ensure that he or she fulfills the eligibility and other norms mentioned above for the post as on specified date, that the particulars furnished by him her are correct in all aspects. एसबीआई ने क्लियर बोल दिया है, क्या बोला है? बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट, आप अप्लाई करने से पहले आपको इंश्योर करना है कि आपके पास वो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड फर्दर एज ऑन स्पेसिफाइड डेट, जिस डेट को उसने मांगा हुआ है. ओके, नाउ we just need to go through the advertisement of SBI CBO. Okay, see, in part A of this advertisement, it is clearly mentioned about the test. Test means what the test, objective test and other descriptive test SBI will take for the selection of the candidates. The part B is written as screening and this part is written as in bold. ये part जो लिखा हुआ है वो bold में लिखा हुआ है. What is this?
online application and document of candidates who qualified in online examination। आप जो लोग भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो गए विल बी प्लेस्ड बिफोर स्क्रीनिंग कमेटी। तो एसबीआई की स्क्रीनिंग कमेटी क्या करेगी, आप जितने लोग भी रिटर्न में क्वालिफाई होंगे उन सब के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी। कौन से? अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और लेटर ऑन। ऐसा नहीं कि आपको इंटरव्यू में मिस हो गया और बाद में चेक किया नहीं एलिजिबल थे तो दे विल आउटराइटली रिजेक्ट यू। द कमेटी विल मैच द जॉब प्रोफाइल सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स, ओके, certified by their existing or previous employer with whom they are or they were employed। एसबीआई क्या करेगी, जो भी आपकी सर्टिफाइड जॉब प्रोफाइल मिली हुई है उसे मैच करेगी किससे? विद द जॉब प्रोफाइल ऑफ स्केल 1 जनरलिस्ट ऑफिसर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसका स्केल 1 ऑफिसर जो जो भी काम करता है, ओके, वो प्रोफाइल आपने हैंडल की है कि नहीं। सी, नॉट ऑल वर्क्स। कुछ लोगों का, मैं ये नहीं कर रहा हूं वो जितने काम कर, बट आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो उससे मैच होनी चाहिए। इन केस दियर जॉब प्रोफाइल डज नॉट मैच सब्सटेंशियली और इज, मतलब ज्यादातर ज्यादातर डिफरेंट है। मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि अगर किसी एक ब्रांच में स्केल 1 ब्रांच हेड है एसबीआई में तो वो बहुत सारे काम कर रहा होगा। और नॉट ओनली इन एसबीआई, पब्लिक सेक्टर बैंक का यही माहौल है कि एक ही नारा है कि सबको सब कुछ करना है। एवरीवन हैज टू डू एवरीथिंग। वो भी विटामिन की गोली है पब्लिक सेक्टर बैंक वाला, उसको एवरीथिंग करना है। ठीक है, उसका एज ए स्पेशलाइजेशन जैसा कुछ नहीं है। ओके, जनरलिस्ट वाला स्पेशली। ठीक है, तो अब देखो, अब आगे क्या कहते हैं, वी नीड टू नो। अगर, अच्छा, इन दिस डिसीजन ऑफ वुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल कैंडिडेट्स। मतलब अगर एसबीआई ने बोल दिया कि आपका जॉब प्रोफाइल नहीं मैच कर रहा है तो नहीं मैच कर रहा है, आपको न कोर्ट न कचहरी न कुछ नहीं होगा। नथिंग विल बी एंटरटेन्ड। एसबीआई ने माना कि आपकी जॉब प्रोफाइल स्केल 1 से मैच नहीं कर रही है एसबीआई के जॉब प्रोफाइल से, देन दे विल आउटराइटली रिजेक्ट यू। नो रिप्रेजेंटेशन और करेस्पॉन्डेंस विल बी इंटरटेन्ड बाय द बैंक इन दिस रिगार्ड। मतलब अगर आप मेल करके भी पूछते हो तो भी वो कुछ नहीं बताएंगे। मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन सर्किल वाइज, मतलब हर सर्किल का कट ऑफ अलग रहेगा। कैटेगरी वाइज ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन ऑनलाइन टेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स हु फुलफिल रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया एज डिसाइडेड बाय स्क्रीनिंग कमेटी। मतलब जो रिटर्न के हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे उस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। फर्दर इंटरव्यू इज आल्सो, इंटरव्यू के लिए बोल रहा है वो, कैंडिडेट्स नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स ऑफ द सर्किल वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द मेरिट लिस्ट ड्रॉन। तो सबसे पहले क्या होगा, रिटन की मेरिट बनेगी। ठीक है, अब अगर किसी सर्किल में 10 वैकेंसीज हैं तो 10 into 3 अप्रॉक्स बोला है तो मतलब 30 लोग इंटरव्यू के लिए क्रॉस किए जाएंगे, तो टॉप 30 बुला लिए जाएंगे। इस तरह से इनकी मेरिट बनेगी। इन्होंने क्लियर कट कह दिया कि अगर आपकी जॉब प्रोफाइल नहीं मैच कर रही है तो ये पॉइंट नंबर बी एडवर्टीजमेंट का पढ़ो तो उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, मियरली क्वालिफाइंग इन ऑनलाइन एग्जाम विल नॉट वेस्ट एनी राइट टू बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम में क्वालिफाई हो भी गया है
और एसबीआई को ऐसा लगा कि भाई इसका तो जॉब प्रोफाइल ही बेकार है, ये तो केवल कैश रिमिटेंस का काम करता है, तो देन आल्सो एसबीआई में आउटलायरी रिजेक्ट यू। ओके, तो अभी व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट मतलब कौन लोग रिजेक्ट किए जा सकते हैं और आप क्या कर सकते हो। नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट। पहला, स्केल वन का क्या प्रोफाइल होता है ये देख लो पहले। पब्लिक सेक्टर बैंक, सी जैसे आरआरबीज में हो आप, या पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हो, तो यू बिकम फ्री। आप एकदम से फ्री रहो, आपको नहीं निकाला जाने वाला। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक और आरआरबीज में है ना कॉन्सेप्ट, क्या, एवरीवन हैज टू डू एवरीथिंग। आप रिकवरी पे भी जाओगे, आपने कैश भी देखा हुआ है। अच्छा, कैश जो क्लेरिकल काम है अगर आपने वो नहीं किया है, चलो मान लो कैश का काम नहीं किया है आपने, ठीक है, वाउचर पासिंग का काम नहीं, मतलब स्मॉल लेवल का, वैसे तो जनरली ऑफिसर हाई लेवल के वाउचर्स पास करते हैं, ठीक है। तो अगर कैश जैसा काम, रेमिटेंस और चेकबुक इशू और एटीएम इशू जैसा काम नहीं किया है आपने, तो यू नीड नॉट वरी, इससे आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने केवल कैश रेमिटेंस का काम किया है, केवल एटीएम डिस्ट्रीब्यूशन किया है, केवल अकाउंट ओपनिंग करी है, ठीक है, आपके जॉब प्रोफाइल में ऐसा है, तो आपको एसबीआई में रिजेक्ट, और मैं तो कह रहा हूं नॉट मे रिजेक्ट, एसबीआई विल रिजेक्ट फॉर द श्योर। ठीक है, उसको काम करने वाले बंदे चाहिए भाई, ऑफिसर चाहिए उसे। तो अगर आपने जनरलिस्ट का काम किया है, मतलब आपने थोड़ा क्रेडिट भी पास किया है, वाउचर पासिंग भी करी है, कैश भी देख, मतलब थोड़ा थोड़ा सब कुछ किया है, स्पेशली क्रेडिट में अगर आपका हाथ थोड़ा सा पक्का है, अगर आपने लोन का काम किया है या लोन की प्रोसेसिंग करी है, ठीक है, इस तरह का काम किया है और आपकी जॉब प्रोफाइल में ऐसा है, तो देन यू विल बी टेकन अदर्स। इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट। Now, how exam zone 247 will be helping you? The help in this regard will be that I will be clarifying. If you have anything to clarify, you may text. Okay, you may text us over this number and see clearly your job profile must मैच विथ नॉट स्केल वन ऑफ एसबीआई, स्केल वन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक या आरआरबीज का भी मैच कर रहा है, तो देन इट इज ओके। अगर आप ब्रांच हेड का काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन अगर कोई बंदा स्मॉल फाइनेंस बैंक में है और वो क्रेडिट कार्ड ही सेल्स करता है, तो एसबीआई उसको रिजेक्ट कर देगा भाई। ठीक है, आप किसी प्राइवेट बैंक में हो, ठीक है, आप केवल लोन की लीड लाते हो और कुछ नहीं, आपको नॉलेज ही नहीं है लोन कैसे प्रोसेस होता है, कोई वाउचर नहीं पास किया है, कुछ और नहीं काम कर रहे हो, ठीक है, तो इट इज आल्सो पॉसिबल एसबीआई में और मे नॉट कंसीडर। ठीक है, टीम लीड हो तो एक बार को एसबीआई सोच भी सकता है, बट अगर ऑपरेशंस में हो, कैश ऑपरेशंस में, केवल कैश ऑपरेशंस और एफडी ऑपरेशंस में हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि एसबीआई आपको रिजेक्ट कर देगा। तो अच्छा, दूसरा आप इससे कैसे बच सकते हो? It is also possible that during whatever you are have submitted in the online examination form of SBI CBO, they might be accepting that. But while during the interview, you do not quote. जब भी आपका इंटरव्यू हो, तो ऐसे कोई भी बात नहीं बोलनी है जिससे ये लगे कि ये बंदा वो काम तो किया ही नहीं है जिसकी हम लोगों को जरूरत है। तो डू नॉट मेंशन, डू नॉट कोट एनी सच थिंग्स। इस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हो। जैसे, क्योंकि एक बार देखो आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया, यू हैव क्वालिफाइड द रिटन,
बट अगर इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट करता है तो दैट विल बी मोर पेनफुल, और स्पेशली जॉब प्रोफाइल के लिए करता है। अब जैसे आईडीबीआई में अगर कोई अभी जो JM0 वाली वैकेंसी आई है, ओके, दे मे नॉट कंसीडर, क्योंकि वो स्केल 1 तो है ही नहीं, पहली बात। तो अगर आप उस तरह का काम कर रहे हो तो वो ऑलरेडी रिजेक्टेड है। अच्छा, प्राइवेट बैंक्स में भी बहुत सारे जो एग्जीक्यूटिव और ऐसे दिखाते हैं, वो आप जो काम करते हो वो पब्लिक सेक्टर बैंक में क्लर्क काम करता है, जो आप वहां पे कर रहे हो। तो उस तरह की चीजें अगर हैं तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग दैट कि कौन कौन से SBI स्मॉल फाइनेंस बैंक और ये बैंक ये वाले सेलेक्ट होंगे या नहीं, बिकॉज लॉन्ग वीडियो बनाना भी पॉसिबल नहीं है। इट इज हाई टाइम टू हैव अ रेस्ट, एंड होप आई कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। मैं चाहता हूं कि आप सब सेलेक्ट हो जाओ, बट ये भी जानना जरूरी है, यू नीड टू नो दैट वेदर यू विल बी सिलेक्टेड और नॉट। तो उस तरह से आपको थोड़ा माइंडसेट बना के रखना रहेगा। और आपने अगर कोई चीज फेक दी हुई है, सर्टिफिकेट फेक दिया है वो, तो उससे सिलेक्शन तो होना नहीं है। SBI में फाइल अ केस ऑन दैट आल्सो। अगर उसका कोई CM या चीफ मैनेजर या लीगल वाला वहां बैठा रहा, तो अगर उसका मूड घूम गया तो देन यू विल बी इन ट्रबल। तो कभी भी फेक सर्टिफिकेट के बेस पे काम मत करो। और प्राइवेट सेक्टर में हो नहीं भी होता है तो आपके पास CFA है, FRM है, रिस्क में कहीं भी आप जा सकते हो। नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। ऐसा नहीं है कि SBI में जाओगे, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी के अलावा और पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत सारे स्ट्रेस हैं। व्हेन यू विल कम यू विल नो that there are a number of things which were not there. तो it is not grass is greener on other side always। तो उस तरह से काम नहीं करना है, बट ये भी जान लेना है कि whether you will be selected or not। with this I thanking you, and best place for your learning is Samsung 24/7। you may text us over WhatsApp over this number for all clarifications, and for your mock interview registrations, whether how to tell in the interview so that they should not get carried away। कई बार क्या होता है, आपने काम अच्छा किया होता है, वो काम किया, लेकिन आप इंटरव्यू में बोलना ही भूल जाते हो। तो अभी उसमें व्हाट कैन आई डू, तो वो क्या है, वो केवल ओनली प्रैक्टिस से आएगा आपको। प्रैक्टिस में क्या अच्छा सी, एग्जाम जोन 247 कोई भी मॉक इंटरव्यू का वीडियो शेयर नहीं करता है ऑनलाइन। वो सिंपली केवल डायरेक्ट टू कैंडिडेट्स को ही शेयर होते हैं, बिकॉज देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स जो हम बताते हैं और हम नहीं चाहते कि वो पब्लिक हो। बिकॉज मेरी बताई हुई चीजों को ही कोई दूसरा दूसरे वर्डिंग्स में बताएगा, और वो चीजें अगर पब्लिक हो गई तो फिर उसका इम्पैक्ट भी अप्रोक्सीमेट 0 हो जाएगा। बिकॉज ईच कैंडिडेट विल बी आंसरिंग लाइक दैट ओनली। तो ठीक है, ओनली वी सेलेक्ट ओनली 20 कैंडिडेट्स फॉर मॉक इंटरव्यू। ओके, तो फर्दर इफ our regular batch has finished the task and goes through the selection process, the first preference will be given by the regular candidates. If seats are vacant, then merely 5 people from the outside will be considered, okay, unenrolled. Then in this way, so you do not do not expect that exam zone 24/7 will be will be admitting you for interview. If you find any another place, you start practicing for interview. We may not provide, it is high chances that you may not be selected for in mock interview with exam zone 24/7 if there you are not in those 20 candidates which are going to be selected for the mock. So interview will play a big role in your selection. So get ready, practice daily, keep an eye on all events going
अराउंड। तो इस तरह से चीजें सबको आपको ध्यान में रखनी है और वैसे पढ़ाई करना है आपको। थैंक यू। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू ऑल। ओके।